So in the last class we were talking about the different type of three-phase transformer, and I have told you that there are 6 types are there according to their configuration. The first was star star, second was delta delta, third was star delta, fourth was delta star, fifth was VV connection or open delta. And I have already told you that if three-phase supply is available and if one of the windings get damaged, okay, or is being removed for any purpose, then how we can supply the three-phase supply to a three-phase load with the help of an open delta connection. Is it clear? Also, I have told you that a layman will always say that if one winding is removed, then the capacity will be 2/3. But in fact, technically we have verified it is not 2/3, it is approximately 58%, that is 57 point something. Is it clear? Now, we will take a numerical, okay. The numerical is clear, okay. What is there? Is it visible? A three-phase transformer has delta connected primary. So, very clear. Primary is connected in delta and secondary is working in star. Is it clear? So, primary is being shown in the delta manner and secondary has been shown in the star manner. Is it clear or not? Okay. Now, the line voltage of primary and secondary are 3.3 kilovolt or 3300 volt. It is clear? Line voltage means VL. Line voltage means VL. Now, in case of delta winding, is it clear? Line voltage is equal to phase voltage. Line voltage is equal to phase voltage. So, VL is equal to V phase in case of delta. However, in case of this, 400 volt respectively. So, secondary voltage is how much? Line voltage 400 volt means this much. Between two any phases, VRY is how much? 400. VYB is how much? 400. And VBR is also equal to 400 voltage. This should have to get clear in the mind. Okay. Not VRN, VBN or VYN is not equal to 400. Is it clear? It will be how much? 400 by root 3. फेज वोल्टेज स्टार कनेक्शन में कितना हो जाएगा? लाइन वोल्टेज का 1/√3. ठीक है. तो अच्छा, और क्या क्या दे रखा है? सो बिफोर प्रोसीडिंग टू व्हाट इज टू बी फाइंड आउट, फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्ट व्हाट आर डेटा इज बीइंग गिवन टू यू. कौन कौन से आपको डेटा दिए हुए हैं? ठीक है. लाइन करंट ऑन द प्राइमरी साइड इज 12 एम्पियर, मीन्स दिस करंट इज 12 एम्पियर. दैट इज लाइन करंट, नॉट फेज करंट, ओनली लाइन करंट. कितना दिया हुआ है? 12 एम्पियर. ओके, व्हाट एल्स? एंड द लोड ऑन द सेकेंडरी साइड. लोड कहां होगा? सेकेंडरी साइड. उसका पावर फैक्टर कितना दे रखा है? 0.8, और वो भी कौन सा? लैगिंग. ये सारे आप डेटा आप लिखिए, पहला स्टेप यही है. इज इट क्लियर? अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है? डिटरमाइन द सेकेंडरी फेज वोल्टेज, लाइन करंट एंड द आउटपुट. अब हमें इसका इस साइड का निकालना है. ठीक है. ये वाला करंट, ये वाला करंट क्या है? लाइन करंट. IR, IV और IB. ठीक है. और हमें यह भी मालूम है कि स्टार में लाइन करंट इज इक्वल टू, स्टार कनेक्शन में क्या होता है? लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट. तो एक बार अगर हमने लाइन करंट निकाल दिया तो फेज करंट भी निकाल सकते हैं. ठीक है. और फेज वोल्टेज भी निकाल देंगे. और लास्ट में क्या निकालना? आउटपुट. आउटपुट मतलब, जब कहा आउटपुट, इसका क्या मतलब हुआ? व्हेन आई से आउटपुट पावर, आउटपुट पावर. अगर बैलेंस लोड है तो कितना होगा? उस दिन भी बताया था, अगर इफ दिस इज बैलेंस लोड देन पावर P इज इक्वल टू हाउ मच? एक्टिव पावर. Whenever say output, it means I am interested in active power. Is it clear? How much it is?
If it is a balanced load, √3 VL IL cos phi. ये होता है कि नहीं होता? इज इट क्लियर? तो पहले VL निकालो, फिर IL निकालो और फिर cos phi निकालो. चलो बढ़ते हैं. तो ये डेटा दिया हुआ है VL1, द फेज वोल्टेज ऑन द प्राइमरी साइड. लाइन करंट इज ऑल्सो गिवन 12 एम्पियर. सेकेंडरी साइड इज कनेक्टेड विथ, ये गिवन डेटा है. ओके, नाउ प्राइमरी साइड फेज वोल्टेज विल बी हाउ मच? डेल्टा इन डेल्टा कनेक्शन लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज. दिस इज क्लियर? क्लियर? Secondary side line voltage is given how much? 400 volt. How much given? 400 volt. So phase voltage will be equal to 400 by √3, assuming the system is balanced. System is balanced. So 400 by √3, how much? 230.94. Clear? Okay. Now we have to find out the transformation ratio. We have to find out the transformation ratio. So with the help of this transformation ratio we can find out the current, because current on primary side is given but current on secondary side is not given. How? First of all, transformation ratio is defined with respect to phase voltages, with respect to V phase upon V phase 1 is equal to K. V phase 2 is how much? 400 by √3, that is 230.94, and V phase 1 is how much? 3300. You will divide it, you will get this transformation ratio 0.0699. Clear? This is clear or not? Now primary side load current is how much? 12 ampere. So phase current will be how much? In delta connected, phase current is not equal to line current, but phase current is 1 upon √3 times the line current. line current कितना दिया हुआ है? 12 एम्पियर. लाइन करंट कितना दिया हुआ है? 12 एम्पियर. 12 का √3 करेंगे कितना आएगा? 6.928 एम्पियर इज द फेज करंट ऑन द डेल्टा साइड, ऑन द डेल्टा साइड. एंड व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो फ्रॉम करंट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम voltage point of view? If it is K is V phase upon V phase 2 upon V phase 1, then from current point of view it will be I phase 1 upon I phase 2. उसका इनवर्स होता है, रिवर्स होता है. इज इट क्लियर? तो ये क्लियर है. हमें किसका करंट मालूम है? I phase मालूम है, तो K भी मालूम हमने कर लिया. K मल्टीप्लाई बाय, सो I phase will be equal to nothing but I phase 1 upon K होगा 6.92 ये वाला. ठीक है. और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ये यहां से निकाल लिया, ये वाला. क्लियर? कितना आया? 99.1111. इट इज क्लियर? सो यू हैव गॉट फेज करंट ऑन द सेकेंडरी साइड. फेज करंट ऑन द सेकेंडरी साइड. सेकेंडरी किस में कनेक्टेड है? स्टार में. किस में? स्टार में. स्टार का रिलेशन याद करो करंट का. I phase इज इक्वल टू I लाइन. I phase हमने निकाल दिया कितना? 99. I लाइन कितना हो गया? 99.11 एम्पियर. क्लियर? सो सेकेंडरी वोल्टेज निकल गया, फेज वोल्टेज. सेकेंडरी फेज करंट निकल गया, सेकेंडरी लाइन करंट निकल गया. अब क्या निकालना? आउटपुट. आउटपुट मीन्स एक्टिव पावर. आउटपुट मीन्स एक्टिव पावर. एक्टिव पावर क्या फॉर्मूला? √3 VL IL cos phi. आउटपुट का सारा सब कुछ किसका? इनटू cos phi. cos phi कितना दिया हुआ है? 0.8. लैगिंग पावर फैक्टर दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ? IL हमने निकाल दिया. कितना निकाला? 99.11. फेज वोल्ट लाइन वोल्टेज कितना है? 400 और √3 कांस्टेंट है. ये मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल कम आउट टू बी हाउ मच? दिस मच अमाउंट, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 1000. हम क्या करते हैं, इसको अगर बड़ा है क्वांटिटी उसको किलोवाट में करते हैं. ठीक है. KVA किलोवाट, KVR. सो डिवाइड बाय 1000, हाउ मच power output is giving? 54.94 kilowatt. So you understand how to handle such type of question. We can take another, a delta bank consisting of 340 kVA 2300 to 230 volt transformer supply a load of 80 kVA.
अब देखिए यहां पर है ना 3 ट्रांसफॉर्मर लिए गए हैं. इट इज नॉट अ सिंगल 3 फेज ट्रांसफॉर्मर, बट 3 फेज कनेक्शन इज बीइंग मेड विद व्हाट? 3 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर. याद रखना, एक 3 फेज ट्रांसफॉर्मर अलग है और एक 3 फेज बनाना किसकी सहायता से? 3 सिंगल फेज. दैट इज सो हियर दैट इज व्हाई इट इज बीइंग यूज्ड. क्लियर? No doubt they are supplying what? A 3 phase load of 80 kVA, but we are using 3 transformer, and these transformer are connected in which fashion? That is, primary is also delta and secondary is also in delta. अरे समझ में आया कि नहीं आया? Now find if one of the transformer is removed. एक ट्रांसफॉर्मर को रिमूव कर दिया गया तो कौन सी कंडीशन आ गई हमारी? ओपन डेल्टा. दोनों डेल्टा डेल्टा में है. ठीक है, एक या तो वाइंडिंग को रिमूव कर दो, या 3 ट्रांसफॉर्मर है तो एक ट्रांसफॉर्मर को रिमूव कर दिया तो क्या हो गया? वो ओपन वीवी कनेक्शन और ओपन डेल्टा कनेक्शन. क्लियर? तो अब उसका क्या पूछ रहा है ये? फाइंड द रिजल्टिंग वीवी कनेक्शन. क्या क्या? केवीए लोड supplied by the क्या और carried by the transformer, percentage of rated load current by each transformer, total kVA rating of VVA bank, ratio of ratings, percentage increase on load when bank is converted into VVA bank. ये सारे पैरामीटर कितने निकालने? हमें 5 पैरामीटर निकालने हैं यदि एक ट्रांसफॉर्मर रिमूव कर दिया गया है. तो कैसे करेंगे? देखो, total KVA load bank in VV bank is nothing upon KVA load carried by per transformer is equal to √3. क्लियर? ठीक है, तो टोटल KVA लोड कितना है? 80 KVA. इज इट क्लियर? तो KVA लोड कैरिड बाय पर ट्रांसफॉर्मर विल बी हाउ मच? 80 बाय √3. लोड 80 KVA का है, 3 फेज है. ये तीनों कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा? 3 ट्रांसफॉर्मर. एक के पास कितना होगा? 80 बाय √3. तो दिस इज क्लियर. सो फर्स्ट केवीए लोड कैरिड बाय ईच ट्रांसफॉर्मर. ठीक है, ये कब कंडीशन है? जब एक अभी काम करना, अभी अभी वो लगा हुआ है. दिस इज द केस व्हेन ऑल द 3 ट्रांसफॉर्मर आर वर्किंग. ओके, एंड इट इज सप्लाइंग द 80 kVA लोड. तो प्रत्येक के द्वारा कितना शेयर किया गया? नाउ परसेंटेज ऑफ रेटेड लोड कैरिड बाय ईच ट्रांसफॉर्मर. ठीक है, ये कब केस का है? हर ट्रांसफॉर्मर क्या रेटिंग का है? 40 kVA. और वो लोड कितना ले रहा है? 46.18. तो ये ओवर रेटेड है या अंडर रेटेड है? ओवर रेटेड है. आपको 40 kVA का ट्रांसफॉर्मर लिया गया है और ऑपरेट कितना कर रहा है वो? 46 kVA. सो इट इज ओवर ऑपरेटिंग, इट इज ओवर रेटेड, दैट इज बाय 115.45%. द सेकेंड कंसेप्ट, परसेंटेज ऑफ रेटेड लोड कैरिड बाय, मतलब रेटेड जो लोड है उसका 115 गुना 115% टाइम इट इज वर्किंग अबाउ. ठीक, विच इज अनडिजायरेबल. ये अनडिजायरेबल है. अब हमें वी नो डेट what is the capacity remains when the transformer is in open delta? 57.7. ठीक है, 57 पॉइंट को 58 भी कर सकते हैं. 0.058 कर देना. फिर क्या कर देना? पॉइंट, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा बट यू कैन डू इट. क्लियर? सो 3 × 40. एक की कैपेसिटी कितनी है? 40. 3 की कितनी हुई? 40 × 3. मगर अब वाइंडिंग हटने के बाद वो कितनी कैपेसिटी पे? 2/3 पे नहीं चल के कितने चलेंगे? 57.7. मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आया? 69.24. तो
कैपेसिटी कितनी थी उनकी? 40 इंटू 3 यानी 120 केवी की, ठीक है, लेकिन रिड्यूस होकर कितनी हो गई? 69। ठीक है, अब कितना फर्क पड़ा आप उसको, वो हमने वो वैसे यूज कर लिया तो इसको बताने की जरूरत नहीं, लेकिन सिर्फ आपको बताया है। ठीक है, लोड सप्लाई बाय ई ट्रांसफॉर्म इन डेल्टा डेल्टा बैंक। अगर सिर्फ डेल्टा डेल्टा होता, मतलब हमने वाइंडिंग को भी रिमूव नहीं किया है, तो हर ट्रांसफॉर्मर कितना लोड लेता? उसको 3 भाग में डिवाइड कर दो, 80/3 कितना हुआ? 26 पॉइंट केवीए। लेकिन जब वीवी बैंक बना तो हर ट्रांसफॉर्मर कितना ले रहा है? 46.18। और अगर वीवी बैंक नहीं होता तो कितना ले रहा है? 80/3 कितना? 26.6। इसका मतलब when transformer is in healthy condition it was below the rated value, वो सही था। लेकिन जैसे ही एक वाइंडिंग खराब हुई वो क्या हो गया? ओवर रेटेड हो गया। ठीक है, तो कितना फर्क पड़ा? 173.2%। ओवरऑल कितना फर्क पड़ा? किसकी कैपेसिटी में? जब वीवी बैंक लोड करा था और जब वो डेल्टा डेल्टा में कर रहा था, उसके परसेंटेज के हिसाब से 173% इज वर्किंग इन ओवरलोड कंडीशन। ये समझ में आ गया न्यूमेरिकल? इज इट क्लियर? तो अब ये फॉल्ट करंट नहीं है, ये फॉल्ट करंट नहीं, इसको क्या कहते हैं? ओवर रेटेड। तो ओवर रेटेड पे भी सिस्टम कुछ समय के लिए चल सकता है, फॉल्ट में नहीं चलेगा। जैसे आपके 100 केवी का ट्रांसफॉर्मर है, उसको आप 10-20% ऊपर चला सकते हैं, 120 केवी पे ही चला सकते हैं। ठीक है, कुछ समय के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। लेकिन उसके बाद अगर आप उसको चलाएंगे देन इट मे बर्स्ट, वाइंडिंग में बर्स्ट और शॉर्ट सर्किट में हैपन, एनीथिंग विल हैपन। अब एक आता है स्कॉट कनेक्शन। क्या आता है? स्कॉट कनेक्शन। ये 6 टाइप का कनेक्शन है। ठीक है, एंड व्हाट इज इट्स पर्पस? इट पर्पस इज टू ऑब्टेन 2 फेज सप्लाई फ्रॉम अ 3 फेज ट्रांसफॉर्मर। कहां काम आता है ये? फर्नेस में। फर्नेस कहां काम आती है? इलेक्ट्रिक फर्नेस। अपनी भट्टी नहीं, कोयले वाली भट्टी नहीं या लकड़ी वाली भट्टी नहीं, कौन सी? इलेक्ट्रिक फर्नेस। अगर आपको देखनी है इलेक्ट्रिकल फर्नेस तो यू गो टू सम दैट हाईटेक, जो हाईटेक में एक इंडस्ट्री है यहां पर, मेवाड़ मोटर्स, मेवाड़ हाईटेक, यू गो देयर। हिंदुस्तान जिंक, ठीक है, स्मेल्टिंग प्रोसेस करना है, आपने रॉ मटेरियल लाया, उसको गलाना है। कैसे गलाओगे? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फर्नेस। ठीक है, उसमें सप्लाई कौन सी लगेगी? इलेक्ट्रिकल, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, कौन सा? 3 फेज। लेकिन उसमें सप्लाई क्या चाहिए? 2 फेज। अब हमारे पास ट्रांसफॉर्मर क्या है? 3 फेज। तो 3 फेज को 2 फेज कैसे बनाए? ठीक है, तो यहां पे इस टाइप के पर्टिकुलर टाइप का कनेक्शन है, उसको क्या कहते हैं? स्कॉट connection. And when it is used to obtain 2 phase supply to supply the furnaces, okay, or even 3 phase load to supply a 3 phase load from the available 2 phase supply. इसका एक पर्पस तो ये है कि 3 फेज ट्रांसफॉर्मर से अपन 2 फेज फर्नेस चलाएं, या फिर हमें 3 फेज लोड को सप्लाई करें, हमारे पास क्या अवेलेबल हो? 2 फेज सप्लाई ओनली। इज इट क्लियर? जैसे गांवों में होता है, वो इलीगल होता है। गांवों में क्या होता है कि आपको सप्लाई दी जाती है 6 घंटे के लिए, एग्रीकल्चर लोड होता है। कितने के लिए दी गई? 6 घंटे के लिए। ठीक है, जैसे आपके सुबह आपकी चांस आ गई, 6 घंटे सप्लाई लग गई, फिर 6 घंटे के बाद बंद हो गई। ठीक है, अब रात को फिर आएगी सप्लाई, लेकिन वो किसके लिए आएगी? दूसरे गांव के लिए। किसके लिए आएगी? दूसरे गांव के लिए। ठीक है, तो
जो पहले वाला गांव है जिसको सुबह सप्लाई हुई थी, ठीक है, वो लालच में आएगा क्या कि जितना खेत उसका पानी पिएगा उतनी ज्यादा फसल जल्दी तैयार होगी? कृषि का तो यही है, ठीक है। तो उसको कैसे किया जाए? तो वो क्या करते हैं कि रात में जो, अच्छा गांव तो चलने, गांव को तो बिजली चाहिए, घर में बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि उस गांव का 3 फेज काट कर 2 फेज दे देते हैं। क्या देते हैं? कुछ गांवों के मकानों को 1 फेज, कुछ गांवों के मकानों को दूसरा फेज। तो गांव तक कौन सी सप्लाई आ रही है? 2 फेज आ रही है। अब उसके गांव में जाते वक्त बीच में क्या आ रहा है? खेत आ रहा है, तो लालच जगेगा कि मैं इस 2 फेज से मेरे इलेक्ट्रिकल जो पंप है, एग्रीकल्चर पंप है, उसको चला लूं। उसको क्या चाहिए? एग्रीकल्चर पंप को क्या चाहिए? जो पानी पिलाएगा खेतों में, 3 फेज। और आ क्या रही है? तो वो क्या करता है कि गांव का व्यक्ति ज्यादा स्मार्ट है, इंजीनियर है आपके कंपैरिजन में। आप तो यहां पढ़ के करोगे और थ्योरेटिकली करोगे, वो प्रैक्टिकली कर रहा है। क्या कर रहा है? 2 फेज को 3 फेज में कन्वर्ट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ ए कैपेसिटर। वो 1 फेज में कैपेसिटर डालकर जो खाली पड़ा है, ठीक है, उसे 3 फेज बनाकर अपना एग्रीकल्चर पंप चला रहा है और 6 + 6 12 घंटे पानी की सप्लाई ले रहा है। डू यू नो दिस फैक्ट? दिस इज द फैक्ट। You ask our Nagendra ji, he knows this fact. How to 2 फेज को 3 फेज में कन्वर्ट करने का गांव में होता है कि नहीं होता है? कैपेसिटर बैंक से सेल कहते हैं उसको, सेल कहते हैं गांव में, ठीक है, तो कन्वर्ट करते हैं। वो आज हम यहाँ पे थोड़ा सीखेंगे, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड स्कॉट कनेक्शन, ठीक है। अब स्कॉट कनेक्शन में क्या होता है कि आपको क्या चाहिए? यहाँ पर 2 फेज, और आपको यहाँ क्या मिल रही है? 3 फेज, एंड यू आर यूजिंग ओनली 2 ट्रांसफॉर्मर। 2 ट्रांसफॉर्मर मीन्स 2 वाइंडिंग ओनली। वही हम क्या करते हैं, ये आर हो गया, क्लियर? ये क्या होगा? उसका दूसरा एंड को क्या सप्लाई दे देंगे? उसी वाइंडिंग को। हाउ मेनी वाइंडिंग आर यूजिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल चेक, हिसाब से कितनी वाइंडिंग होनी चाहिए 3 फेज में? हम कितनी यूज कर रहे हैं? श्योर देख रहे हैं? अब क्या कर रहे हैं? जो पहली वाइंडिंग ली उसके एक एंड को क्या दे दिया? आर। उसी के दूसरे एंड को क्या दे दिया? वाई। और यहां से हमने एक टेप निकाली, टेपिंग, सेंटर टेपिंग, इट इज कॉल्ड सेंटर टेपिंग, एंड कनेक्टेड टू द सेंटर टेपिंग टू द सेकेंड वाइंडिंग फर्स्ट एंड। कनेक्शन हो गया। और 3rd फेज हमने इसके सेंटर टेपिंग को दे दी। ध्यान से समझिए इसकी प्राइमरी साइड की स्कॉट कनेक्शन। कनेक्शन आपको याद रखना है। हम 3 फेज सप्लाई ले रहे हैं, वाइंडिंग्स कितनी इस्तेमाल कर रहे हैं? 2। इज इट क्लियर? क्या करेंगे? एक फेज, फर्स्ट एंड ऑफ द फर्स्ट वाइंडिंग, सेकेंड फेज, सेकेंड एंड ऑफ द फर्स्ट वाइंडिंग। फर्स्ट वाइंडिंग से एक सेंटर टेप लिया, मतलब 50% पर, जितने भी टर्न्स है उसके 50% पर, और हमने कहां कनेक्ट कर दिया? सेकेंड वाइंडिंग के फर्स्ट एंड पे। और जो 3rd फेज है उसको किसको दिया? सेंटर टेप ऑफ द सेकेंड वाइंडिंग। इन दिस वे अवर प्राइमरी साइड स्कॉट कनेक्शंस आर प्रिपेयर्ड। समझ में आया? अब इधर देखते हैं, इधर क्या किया? ये कहलाता है मेन ट्रांसफॉर्मर। ये क्या कहलाता है? और ये कहलाता है टीजर ट्रांसफॉर्मर। ये क्या कहलाता है? टीजर ट्रांसफॉर्मर। और ये टोटल कनेक्शन क्या कहलाते हैं? स्कॉट नाम के एक साइंटिस्ट ने इसको दिए थे कनेक्शन, इन ऑर्डर टू सप्लाई 2 फेज डिवाइसेस फ्रॉम अ 3 फेज सप्लाई सिस्टम विद द हेल्प ऑफ ए 3 फेज ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये आपको याद रखने, एक तरह से याद हो गए। 2 वाइंडिंग लेंगे, पहले वो प्राइमरी साइड में क्या करेंगे कि आर को, फर्स्ट एंड को, वाइंडिंग, फर्स्ट वाइंडिंग के फर्स्ट एंड को आर पे,
सेकेंड एंड को वाई पे, फर्स्ट वाइंडिंग का सेंटर टेप सेकेंड वाइंडिंग के फर्स्ट एंड पे, और इसका सेंटर टेप को थर्ड फेज को। इन दिस वे आर वाई भी सप्लाई दे दी दो वाइंडिंग को, ठीक है। अब आते हैं हम सेकेंडरी साइड, है क्या, ये सेकेंडरी साइड है, क्लियर। नाउ दिस इज सेकेंडरी साइड इज देयर, व्हाट आई हैव डन, अगेन टू वाइंडिंग्स, दो ट्रांसफॉर्मर ही ले रहा हूं मैं, यानी दो वाइंडिंग्स। क्या किया मैंने, दोनों को कॉमनली कनेक्ट कर दिया, दिख रहा है ये पॉइंट, ठीक है। और ये आपके 3 पॉइंट आ गए, इज इट क्लियर। एंड दिस नाउ यू कैन सप्लाई इट टू द आइदर 3 फेज लोड और 2 फेज सप्लाई। अरे समझ में आया कि नहीं आया, इज इट क्लियर। 2 फेज में 2 फेज और एक न्यूट्रल होगा, क्लियर। तो आप किसी एक को फेज बना दीजिए और एक को न्यूट्रल बना, क्लियर। अरे समझ में आया कि नहीं आया, दिस कनेक्शन इज कॉल्ड स्कॉट कनेक्शन। तो ये आपको याद रखना है, प्राइमरी साइड क्या होगा और सेकेंडरी साइड क्या होगा, ठीक है। तो जिसके 50% टेपिंग होती है वो क्या कहलाता है, मेन ट्रांसफॉर्मर, क्लियर। एंड वन हैविंग 86 इज कॉल्ड टीजर ट्रांसफॉर्मर, क्लियर। वन हैविंग, other one having 86 point taping is called teaser transformer. If secondary of the two transformer are connected, then 2 phase 3 wire system is obtained. हो गया। तो हमारे जो फर्नेस 2 फेज वाली सिस्टम थी उसको हमने स्कॉट कनेक्शन से 3 फेज सप्लाई को वाया 3 फेज ट्रांसफॉर्मर से हमने सप्लाई कर दी विद द हेल्प ऑफ विच कनेक्शन, स्कॉट कनेक्शन, क्लियर, ठीक है। तो इस प्रकार हमने कितने कनेक्शंस, कितने टाइप के ट्रांसफॉर्मर स्टडी किए कनेक्शन में, 6 टाइप, स्टार स्टार, डेल्टा डेल्टा, स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार, ओपन डेल्टा एंड लास्टली इज स्कॉट कनेक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका डायग्राम एंड वेयर इट इज फाइंड इट्स एप्लीकेशन, क्लियर। अब इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, इज इट क्लियर। 2 ट्रांसफॉर्मर्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ स्टार कनेक्शन ऑपरेटिंग फ्रॉम ए 415 3 फेज सप्लाई फॉर सप्लाइंग 2 सिंगल फेज फर्नेसेस। तो सिंगल फेज फर्नेस है 2 है, कितनी है, 2 है। तो प्रत्येक को कितना चाहिए, एक फेज और न्यूट्रल, एक फर्नेस को फेज और न्यूट्रल और दूसरे को फेज और न्यूट्रल। तो न्यूट्रल को हम कॉमन कर देंगे और दोनों को दे देंगे और बाकी 2 फेज बनाई देंगे विद द हेल्प ऑफ व्हाट, स्कॉट कनेक्शन। ऑन द 2 फेज साइड इफ द टोटल आउटपुट इज 150 kVA, आउटपुट किसका, लोड कौन है यहां पर, फर्नेस। कैलकुलेट सेकेंडरी पॉइंट टर्न रेशियो एंड वाइंडिंग करंट ऑफ ईच ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो अब आप इस पहले क्वेश्चन से ये फाइंड आउट कीजिए कि इसमें डेटा क्या क्या है, व्हाट आर द डेटा इनसाइड इट, इज इट क्लियर। पहले क्या डेटा है, फ्रॉम 500 वोल्ट सप्लाई। सप्लाई हमारी कैसी है, देखिए 3 चीजें यहां पर, सप्लाई, ट्रांसफॉर्मर और लोड। लोड क्या है हमारा, फर्नेस, लोड क्या हमारी फर्नेस। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। सप्लाई हमारी कितनी है, 3 फेज, कितनी, 415 वोल्ट 3 फेज सप्लाई, इज इट क्लियर। और इनके सप्लाई और लोड के बीच में कौन है, ट्रांसफॉर्मर, किस फॉर्म में, स्कॉट कनेक्ट, क्लियर। ये तो समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो प्राइमरी वोल्टेज कितना हो गया, सेकेंडरी वोल्टेज किसको देना है, फर्नेस को, कितना है 125 वोल्ट,
अच्छा, एक चीज ध्यान रखना कि जब भी मैं कहूं कि 515 वोल्ट 3 फेज ट्रांसफॉर्मर, तो आप कंफ्यूज में मत आना कि सर ये फेज वोल्टेज है कि लाइन वोल्टेज है. इट इज अंडरस्टूड दैट इट इज अ लाइन वोल्टेजेस. जैसे भी कहीं मैं क्वेश्चन में ऐसे लिखूं 10 kVA 415 बाय 33 वोल्ट, ऐसे मैंने लिख दिया. ठीक है, ये 3 फेज ट्रांसफॉर्मर है सपोज, या 3 पॉइंट ऐसे लिख दिया मैंने. ठीक है, 3 फेज, इट इज अ 3 फेज ट्रांसफॉर्मर. तो ये वोल्टेज क्या है? प्राइमरी वोल्टेज. मगर प्राइमरी कौन सा? लाइन टू लाइन. इट इज अ लाइन वोल्टेज. ये कौन सा है? सेकेंडरी वोल्टेज. कौन सा? लाइन सेकेंडरी वोल्टेज. इस चीज को समझना न्यूमेरिकल्स में. ठीक है, until unless not mentioned it is a phase voltage, the voltages mentioned against the transformer are always taken as a line voltage. जब तक कि उसने कहा नहीं हुआ, नहीं कुछ भी कहा गया, तो हमेशा क्या मानेंगे? वो क्या है? जैसे हम बोलते हैं ना 440 वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर होता है, तो वो वोल्टेज क्या है? लाइन टू लाइन, आर और वाई, वाई और बी और आर के बीच में. और अगर हमें फेज वोल्टेज चाहिए, क्योंकि उधर हमारी स्टार कनेक्टेड होती है, तो हम 415 का या 400 वोल्ट का √3 करेंगे. तो फेज और न्यूट्रल के बीच में कितना आएगा? 230 वोल्ट. 400 डिवाइडेड बाय √3, वो कितना आता है अप्रोक्सीमेटली? तो इसीलिए हमारे घर पे सप्लाई कितनी आती है? 230 वोल्ट सिंगल फेज. फेज और न्यूट्रल की कितनी आती है? 230 वोल्ट. ठीक है, हम मान के चलते हैं कि चलो 10 वोल्ट ड्रॉप हो गया. कितना? किसी भी कारण, इसलिए आपके जितने भी बल्ब या डिवाइसेस हैं उस पर रेटिंग क्या लिखी होती है? 220 वोल्ट. कितनी लिखी होती है? 220 वोल्ट. समझ में आया ये कंसेप्ट? अब हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निकालेंगे. ठीक है, अब इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है. ठीक है, तो हम लाइन टू लाइन निकाल देंगे. सेकेंडरी लाइन टू प्राइमरी लाइन. सेकेंडरी लाइन कितना है? सेकेंडरी कितना है? प्राइमरी 415. कितना आया? क्लियर? तो टर्न रेशियो हमारा कितना हो गया? 0.4521. ये क्लियर हो गया. नेक्स्ट, अब क्या निकालना हमें? सेकेंडरी करंट. तो क्या दिया हुआ हमें सेकेंडरी साइड? आउटपुट दिया हुआ है. कितना है? क्वेश्चन पढ़ो. 150 kVA. kVA मीन्स वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट. 150 इंटू 1000 वोल्ट एम्पियर. और वो कुछ नहीं होता है. वोल्ट एम्पियर क्या होता है? वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट. अब आपके पास वोल्टेज दिया हुआ है, केवीए दिया हुआ है, क्या आप करंट निकाल सकते हैं? और आउटपुट किधर होता है? प्राइमरी साइड या सेकेंडरी साइड? सेकेंडरी साइड. तो ये जो करंट निकालेंगे किस साइड होगा? सेकेंडरी साइड. किधर होगा? सेकेंडरी साइड. अब ये 2 क्यों आया? हमारे पास कितने फर्नेस है? 2 फर्नेस है. कितनी है? 2 फर्नेस. ठीक है, 2 फेज हो गया ना. ठीक है, डिवाइड बाय 2 करके एक सिंगल हम निकालेंगे. तो कितना हो गया वो? सेकेंडरी करंट इज हाउ मच? 333.32 एम्पियर. अब हमें क्या निकालना है? प्राइमरी करंट. तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निकाल दिया N2/N1. ठीक है, N2 मालूम है, यानी सेकेंडरी करंट मालूम है, तो प्राइमरी निकाल सकते हैं. क्या होता है? N2/N1 इज इक्वल टू I1/I2. हमें क्या निकालना है? I1. तो N2/N1 मल्टीप्लाई बाय I2. सो आई हैव जस्ट प्लेस दिस वैल्यू. हाउ मच इट कम्स आउट टू बी? 180.7
एम्पियर. Clear? Now come टीजर ट्रांसफॉर्मर. एक होता है मेन ट्रांसफॉर्मर और एक क्या होता है टीजर ट्रांसफॉर्मर. मेन ट्रांसफॉर्मर पे कितनी टेपिंग होती है 50% और टीजर ट्रांसफॉर्मर पे कितनी होती है 86.6 होती है कि नहीं होती है. ठीक है, वो बेसिकली होती क्या है, आप √3 कितना आता 1.732 डिवाइडेड बाय 2 0.866 परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा 86.6. अरे समझ में आया कि नहीं आया, इज इट क्लियर. तो प्राइमरी वोल्टेज कितना है, तो टीजर ट्रांसफर प्राइमरी वोल्टेज टीजर ट्रांसफॉर्मर में कितना होगा 359.40 वोल्ट. क्लियर. सेकेंडरी वोल्टेज कितना है 225 वोल्ट. ठीक है, ट्रांसफॉर्मर रेशियो अब कितना होगा सेकेंडरी डिवाइडेड बाय प्राइमरी 225 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 0.66. ठीक है, तो टर्न रेशियो ये हो गया. बस यही निकालना था हमें. क्या क्या थे हमारे, कैलकुलेट द सेकेंडरी टू प्राइमरी टर्न रेशियो एंड द वाइंडिंग करंट ऑफ ईच ट्रांसफॉर्मर. निकाल दिया हमने. मेन ट्रांसफॉर्मर पर तब कितना होगा और जब वो टीजर ट्रांसफॉर्मर बनेगा तब कितना. अरे समझ में आया कि नहीं आया. ठीक है, सो दीज आर द न्यूमेरिकल्स. ओके, अब एक और पॉइंट जो रहता है दैट शुड आई गेट क्लियर, दैट आई विल क्लियर इट थ्योरेटिकली, द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ए 3-फेज ट्रांसफॉर्मर. पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ए 3-फेज ट्रांसफॉर्मर. अभी तक हमने किसका पढ़ा पैरेलल ऑपरेशन, है parallel operation of ट्रांसफॉर्मर. क्या मतलब हुआ, पहली बात तो पैरेलल ऑपरेशन क्यों करते हैं ये मैंने सिंगल फेज में भी समझाया था. क्या था उसमें रीजन कि इफ यू वांट टू शेयर द लोड एक्सेस लोड, then instead of increasing the rating of that transformer you go for another transformer which is connected in parallel with that first transformer, and there can be infinite number of transformer as per your load requirement. आपकी लोड रिक्वायरमेंट कितनी उतने आप लगा सकते हो, जरूरी नहीं कि एक ही लगाओ, 2 भी लगा सकते हो, 3 भी लगा सकते हो और 4 भी लगा सकते हो. दिस इज क्लियर. अब दूसरा और क्या था उसका एडवांटेज, क्यों हम गो फॉर पैरेलल ऑपरेशन. अगर एक खराब हो गया, ठीक है, फॉर टाइम बीइंग वी कैन शिफ्ट अवर लोड ऑन द सेकेंड ट्रांसफॉर्मर और थर्ड ट्रांसफॉर्मर विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल. ये था, तो रिलायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है. इज इट क्लियर. अच्छा, इन इट विल इकोनॉमिकल ऑल्सो. इन ऑर्डर टू पुट 2 ट्रांसफॉर्मर in parallel of the same rating, it will be economical in comparison to putting a big size transformer to meet out the load requirement. एक लोड है आपकी, बड़ी हुई लोड है, तो आप एक पुराने को हटाने के बजाय उसके बड़े लगाने के बजाय आपके सस्ता क्या पड़ेगा कि आप एक दूसरा ट्रांसफॉर्मर उसी रेटिंग का पैरेलल में लगा दें. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम आएगी. ठीक है, overall operational cost is also come out to be less in comparison to that big size 3-phase transformer. So all these factors are making us to go for parallel operation. But parallel operation simply does not mean that connect in parallel. Certain necessary and sufficient conditions are to be satisfied. पहला क्या है, voltage ratio should be same, per unit impedance should be same. Is it clear? Otherwise what will happen?
If voltage ratio is not same, then what will happen? Circulating current will flow on the secondary side, which can damage the windings, clear? और क्या? अब यहां पे एक और चीज आती है पहले ऑपरेशन में, द फेज सीक्वेंस शुड ऑल्सो बी सेम. ठीक है? इफ यू आर कनेक्टिंग the three phases to RYB, then the three phases of that should also be connected. If phase sequence is RYB, the phase sequence of second parallel transformer should also be RYB. It should not be RBY. If first transformer का अगर फेज सीक्वेंस क्या है, R तो सेकंड का भी क्या होना चाहिए? नॉट दो ही फेज सीक्वेंस होते हैं, या आर वाई बी या आर बी वाई. ठीक है? तो ये चीज हमें चेक करनी है, फेज भी चेक करना है. इज इट क्लियर? तो दीज आर सम कंडीशंस, फेज सीक्वेंस, वोल्टेज रेशियो, पर यूनिट इंपेडेंस, all should be same in order to have a successful parallel operation. Clear? अब now this ends your transformer section. इसमें किसी को कोई doubt? If anybody has any doubt, if anything you find, auto transformer we have already done. We have already done single phase transformer, and this is all about your three phase transformer.